Hello everyone. This is Ashish. I welcome you to another session on GK for CMAT guys. ये हमारा GK का सीरीज चल रहा है and this is the third session. I have already published first two sessions and they must have helped you a lot. Guys, what I am trying to do is कि ये जो sessions है इसमें I am trying to touch different areas जहाँ से questions आ सकते हैं. So if you follow these sessions sincerely ना आपको एग्जाम में you'll be very comfortable, very much comfortable. Okay, I don't think any other strategy is required other than following what I am doing in the session. And then I also recommend post readings, right? Question के साथ साथ I tell you what you need to read afterwards. वो भी करते जाओ and you are good to go for CMAT 2025. So without wasting much of your time, let's start today's session. लेकिन उसके पहले guys, I'd like to introduce my team. Not introduce, you guys are only aware of all of us. Surana sir, me and Ritu ma'am, we are taking care of. Surana sir is taking care of DILR. I am taking care of quant and miscellaneous sections. Like GK, I am taking care of GK as well. Apni Ritu ma'am is taking care of innovation and entrepreneurship. So we will be taking care of all the aspects for all the management examinations जो major है. Okay. Chalo guys, let's come up with the first question. Okay. So important areas of CMAT GK that you need to focus. I always show this slide. क्या है बेटा important areas? Current affair, business economy, history, geography, polity, the major events. And that too अगर recent past में इनसे associated कोई event है, that becomes the most important. Okay. Science and tech, awards, persons in news, books and authors, programs and acts, important articles of constitution, famous sports person, famous sports important sports terms, dances of India, top mergers, list of languages, reports, days and dates, international organizations, list of brands and taglines, stock exchanges and CON brand ambassadors. Let's move with the first question. The question is in front of you. Dengue is caused by which one of the following? Bacteria, virus, fungus, or is it because of the pollution? Dengue is caused by which of the following? It is caused by virus. एक बार चेक कर लेना. Diseases and their causes. Okay. Food poisoning, diarrhea, pneumonia, cough, TB. Food poisoning, diarrhea, cough, pneumonia, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बैक्टीरिया से होता है. ठीक है. डेंगू इज कॉज्ड ऑफ वायरस. चलो बेटा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which movie won Best Animated Film Awards at Golden Globe 2025? Try answering the question. Awards, very important guys. Which movie? देखो अलग अलग कैटेगरी होता है. ये एनिमेटेड है, एक होता है बेस्ट मोशन पिक्चर फॉर ड्रामा, ओके, एक होता है बेस्ट मोशन पिक्चर फॉर म्यूजिक और कॉमेडी. ये तीन अलग अलग कैटेगरीज है. ओके. बेस्ट पिक्चर ये भी अलग अलग कैटेगरीज में मिलती है. ओके. ड्रामा की कैटेगरी में द ब्रूटलिस्ट इज द मूवी, जिसको अवार्ड मिला. ओके. कॉमेडी और म्यूजिकल ये सेम कैटेगरी में आते हैं. इसमें एमिलिया पेरेज को मिला अवार्ड. ओके. एनिमेशन के सेगमेंट में फ्लो को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड.
एंड ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट फीमेल एक्टर का, बेस्ट मेल एक्टर एंड बेस्ट फीमेल एक्टर का। तो बेस्ट मेल एक्टर का जो अवार्ड है, बेस्ट मेल एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है एड्रियन ब्रोडी को। ओके, बेस्ट मेल एक्टर एंड बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर फर्नांडा टोरेस, फर्नांडा टोरेस। And this one was for the movie The Brutalist itself. ये जो था ना एड्रियन ब्रोडी को जो अवार्ड मिला, दैट वाज फॉर द ब्रूटलिस्ट इटसेल्फ। एंड इनको शायद आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर इज अ मूवी, उसके लिए फर्नांडा टोरेस रिसीव्ड बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड। एंड गाइस, और क्या, और कुछ है इसमें? चलो, और कुछ नहीं है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इनकी एक मूवी है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, एड्रियन ब्रोडी की, 2002 में आई थी, द पियानिस्ट। अगर टाइम मिले तो कभी देख लेना, द पियानिस्ट। ये मनी हाइस्ट में भी थे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक मूवी थी उसमें भी थे, टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर। ये सब उस टाइम की मूवीज है जब मैं छोटा था और मैं देखा करता था मूवीज। पियानिस्ट भी 2002 की बात करो, 22 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ जाओ क्या बेटा, आ जाओ। Which of the following pairs of states and capitals is not correct? Which of the following pairs of states and capitals is not correct? Andhra Pradesh Amravati is right. Chhattisgarh Raipur is right. Meghalaya Shillong is right. Arunachal Pradesh का दिसपुर is wrong. आप ढूंढ के बताओ क्या है, आप ढूंढ के बताओ कौन सा नगर है। ओके, दिस इज नॉट राइट। इसी बहाने आप कम से कम गूगल करोगे। ओके, इसी बहाने आप कम से कम गूगल करोगे। एंड उसके बाद आप और भी सारे के सारे जो यूनियन टेरिटरीज है उनके भी कैपिटल के नाम देख लेना, ठीक है, एक नजर भगा लेना। ओके, कारावती किसका कैपिटल है, सब देख लेना, राइट। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ये रॉन्ग है, मतलब दिस पेयर इज रॉन्ग, बट द आंसर इज दिस ओनली, दिस पेयर इज रॉन्ग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sarah Jane Taylor, who took retirement in September 2019, was associated with which sports? Cricket, basketball, hockey, tennis, wrestling. Okay. Sarah Jane Taylor. Sir. चलो guys, she was in cricket. Okay, and to be honest, Sarah Taylor जो है ना, she was so good at her game, मतलब one of the best. I follow little bit of cricket, ठीक है। वुमेन्स में ना कुछ एक प्लेयर्स है ऑल टाइम लीजेंड्स, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेल टीम में भी खेल के अच्छा परफॉर्म करेंगे। शी वॉज, आई बिलीव शी वॉज विराट कोहली एंड शी वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। दिया है क्या? शी वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, सेरा टेलर वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, कुछ प्लेयर्स है आज के डेट में भी, लाइक वुमेन्स क्रिकेट में कौन है? एक तो एलिशा पेरी है अपनी, ऑस्ट्रेलिया, बेथ मुनी, बेस्ट आज की डेट में, बेथ मुनी, गार्डनर, एस्ली गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं सारे, ताहिला मैग्रा, नॉट टू फॉरगेट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम ऑफ वुमेन क्रिकेट जो मुझे लगती है मेग लैनिंग, ठीक है, नेट स्काइवर, ये न्यूजीलैंड है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, नेट स्काइवर न्यूजीलैंड। ओके, इंग्लैंड की बात करें तो एक्लेस्टोन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ओके, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स
एक स्पिनर यहाँ भी थी, जेस जोनासन, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलियन बंच है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन बंच है, जेस जोनासन, ये एक नैट स्काइवर न्यूजीलैंड की है, जेस जोनासन, ठीक है, साउथ अफ्रीका की मैरियन काप, वुलवाट, तो एक बार देख लेना फटाफट। ओके, दीज आर सम वेरी फेमस नेम्स, दीज प्लेयर्स आर वेरी गुड। ओके, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाया, लेट्स मूव अहेड। आई फॉलो क्रिकेट अ लिटिल बिट। Who among the following discovered the neutrons? Who of them discovered neutrons? Straightforward question है, if you know, you know. Okay. Correct answer to this question is Chadwick. J. Chadwick. Okay. J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था, गोल्डस्टाइन ने पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, पॉजिटिव पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस। ओके, और अपने जे चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का किया था। सॉर्टेड। चलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. Before moving to the next question, guys, like we are running this resolution batch for CAT 2025. So if you're targeting CAT 2025, ये दिमाग में है कि करना है, this is the right time, guys. Classes have started. अभी 2-3 classes ही हुई है as I'm speaking, and these classes will go until May 26. सब कुछ मिल जाता है, जो भी आपको चाहिए ना, एवरीथिंग इज देयर, क्लासेस, डाउट सेशन, गूगल मीट, फुल लेंथ मॉक, हाफ लेंथ मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर, पर्सनलाइज्ड अटेंशन इज देयर गाइस। व्हेन आई से पर्सनलाइज्ड अटेंशन, आई रियली मीन इट। ओके, and our batch, this batch is priced at 9,999 a single batch, बट आपको लगता है सर आई एम नॉट श्योर, मैं एक बैच में शायद कर पाऊं ना कर पाऊं, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो यू शुड गो विथ प्रो बैच, प्रो सब्सक्रिप्शन। प्रो सब्सक्रिप्शन क्या है? प्रो सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्रिप्शन टू ऑल द बैचेस फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड मे बी इफ यू परफॉर्म्ड वेल 2026 के लिए भी। ओके, जितने भी बैचेस हम लोग 2025 में लाने वाले हैं फॉर कैट एंड फॉर ओमिट्स, सबका सब्सक्रिप्शन आपको एक MBA प्रो में मिल जाएगा आपको। एंड इफ यू स्कोर सम रियल नाइस परसेंटाइल बट आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो वी गिव यू कैट अश्योर, मतलब योर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो ऑन अस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज द कैट अश्योर प्रोडक्ट, कैट अश्योरेंस दैट वी आर गिविंग। लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है, ये हमारे वेबसाइट पे भी है और हमारे ऐप के ऊपर भी है, डू चेक देम आउट। लेट्स मूव फॉर द टाइम बिंग। प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज गाइस, जल्दी कर लो, अगर आपका प्लान सेट है जल्दी कर लो। ओके, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The book entitled A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes was written by whom? Was written by whom? Was it Sir Isaac Newton? Was it Sir Einstein? Was it Sir Stephen Hawking? Or was it Sir C.V. Raman? The correct answer to this question is Stephen Hawking. He wrote the book A Brief History of Time from the Big Bang to Black Hole. इन्होंने और भी बुक्स लिखे थे, एक बार आप गूगल कर लेना। यूनिवर्स इन अ नटशेल, द ग्रैंड डिजाइन, एक दो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, ग्रैंड डिजाइन, ठीक है। अब बाकी लोगों का भी, आप इन दोनों के तो बुक्स मोस्टली फिजिक्स को लेके थे, मोस्टली। सर सीवी रमन का था द न्यू फिजिक्स, मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दीज आर वेरी फेमस बुक्स। सीवी रमन,
molecular diffraction of light, molecular diffraction of light, ठीक है, ये इनका एक था। दूसरा इनका था द न्यू फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इन्होंने लिखा था OPTIKS, ठीक है, एक बार गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है, आपको और भी बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, ओके, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, ठीक है, थोड़े बहुत याद आ रहे, थोड़े बहुत याद नहीं आ रहे, ठीक है। वाई सोशलिज्म, अगेन आइंस्टाइन, नाम देख के याद आ जाता है मुझे वैसे चलो ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना फटाफट, दीज ऑथर्स एंड नॉट ओनली दीज ऑथर्स, सम फेमस बुक्स रिटन ऑन फिजिक्स एंड बिग बैंग थ्योरी, ये पूरा देख लेना आप लोग, ठीक है। Deuce is a term associated with which of the following sports? You have 4 sports: baseball, cricket, hockey, lawn tennis. Deuce. Deuce. ड्यूस उसी गेम से एसोसिएटेड है ऑफ द गिवन ऑप्शंस जिस गेम से आंद्रेज अगासी एसोसिएटेड है, जिस गेम से पीट सैम्प्रास एसोसिएटेड थे, जिस गेम से राफेल नडाल एसोसिएटेड थे, जिस गेम से नोवाक जोकोविक एसोसिएटेड थे, लॉन टेनिस। ड्यूस होता क्या है, इसमें जो पॉइंट सिस्टम होता है ना वो ऐसा होता है, पहले आपको 10 मिलता है, फिर 20 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, फिर 40 हो जाता है, एंड देन 40 के बाद यू विन द पॉइंट। बट इफ द ओपोनेंट इज ऑल्सो ऑन 40, आप दोनों का 40-40 है ना, एक पॉइंट, एक फुल पॉइंट अर्न करने के लिए सब पॉइंट चाहिए बेटा। तो अगर एक पॉइंट में लास्ट में दोनों का 40-40 है ना, दिस केस इज ड्यूस। और अगर ड्यूस होगा तो ड्यूस के बाद आपको एडवांटेज मिलता है, ड्यूस के बाद एडवांटेज मिलता है, और एडवांटेज के बाद आप जीतते हो। ड्यूस हुआ, पॉइंट्स इक्वल, सब पॉइंट्स इक्वल हो गए, फिर आपको एडवांटेज मिलेगा, आप पॉइंट स्कोर करोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, फिर स्कोर करोगे तब आप जीतोगे। और अगर आप एडवांटेज पे हो और सामने वाले प्लेयर ने स्कोर किया तो आप वापस ड्यूस पे आ जाते हो, ओके। सो ड्यूस के बाद आपको 2 बार लगातार पॉइंट स्कोर करना पड़ता है टू अर्न दैट कंप्लीट पॉइंट इन लॉन टेनिस। चलो बेटा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The government of India has made it mandatory to quote PAN card for all transactions above what amount? 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000। बड़े लोग इस क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली दे सकते हैं। बड़े लोग मतलब those who are earning money mostly they can answer the question immediately. You need to produce PAN if you are transferring more than 50,000. Okay. You need to produce PAN card if you are transferring more than 50,000. Okay. Try next question. What significant milestone will ISRO, Indian Space Research Organization, will achieve with the launch of NVS-2 satellite in January 2025? Very important. It's very important, beta. Try answering the question. Is it first interplanetary mission? नहीं, मॉम हो चुका है ऑलरेडी। Deployment of the heaviest satellites to date? Nope. Completion of NAV IC satellite constellation? Nope. It is the 100th mission of GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. 100th mission of GSLV. So this is the important landmark that ISRO is gonna achieve when they will launch NVS-2 in January 2025.
5. Okay. Let's jump to the next question. Which article of the Indian Constitution gives President the power of pardoning? Maafi. Okay. Under which article President can exercise the power to pardon someone from death? Come on, guys. Try answering the question. The correct answer is Article 72. The correct answer is Article 72. Article 73 क्या है? Article 73 is the extent of executive power of union. Okay. Article 73 के बाद Article 74 क्या है? Article 74 lays the rules for those council ministers who are going to aid president in their functioning. Okay. उसके बाद Article 75. Article 75 क्या है? Article 75 deals with 75. I am missing 75. Okay. 75 क्या है? I forgot 75. देखूंगा तो याद आ जाएगा. I forgot 75. Article 76 क्या है? It is related to Attorney General of India. Okay. Attorney General of India. Article 77 क्या है? The conduct of business of government is taken care in Article 76. Article 77. Article 77. हालांकि Article 77 ऑप्शन में था नहीं, बट मुझे याद आ गया. तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. ओके. 76 क्या बोला मैंने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. 75 आई एम मिसिंग. 73 एंड 74. 73 it lays the foundation for those council ministers who are going to aid president in their functioning, and 73 is it gives you the guideline for executive powers of the union, center government. चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा. Which one of the following is a communicable disease? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे को? स्कर्वी, मीजल्स, डायबिटीज, आस्मा. Which one of them is communicable disease? The correct answer is measles. Okay. स्कर्वी विटामिन डेफिशिएंसी से होता है. ठीक है. तो विटामिन डेफिशिएंसी से ना आप लोग याद कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस. विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस. और विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से होता है बेरीबेरी. विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से होता है स्कर्वी. खट्टा लेमन इज रिच इन विटामिन सी. तो इससे आप ये भी याद कर लेना द फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन ए, बी, सी, डी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये भी याद कर लेना. ठीक है. मैग्नीशियम से याद आया, हमारे बॉडी को 25 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम लगता है. ठीक है, या होता है 20. हमारे बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है. अच्छा. विटामिन डी, सन, रिकेट्स. ओके. विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स. एक बार देख लेना. ठीक है. विटामिन डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीजेस होते हैं. एंड द फूड्स दैट आर रिच इन वेरियस विटामिन्स. नेक्स्ट. Dairy comes under which sector of economic activity? Dairy comes under which sector of economic activity? Primary, secondary, tertiary, quaternary. Dairy. Cats, it's very difficult for me also to remember all of the things. मुझे धुंधला धुंधला सब याद रहता है. ठीक है. तो अगर एक आधा मिस्टेक इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना. एंड गूगल कर लो यार. वैसे भी आई एम गिविंग यू द गाइडलाइंस, आइडिया कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है. पढ़ना तो आपको है. ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प. माई रोल इज वेरी लिटिल, मे बी लिटिल क्रूशियल, बट इट्स वेरी लिटिल. तो अगर कुछ भूल चूक हो तो माफी. चलो बेटा. Dairy comes in primary sector. What are these sectors? We'll try to explain a little. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर are those sectors जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है.
जैसे नेचर से, जैसे डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ओके, सेकेंडरी क्या है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है नेचर से, बट हाँ नेचर का यूज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे शर्ट हो गया, मतलब आप कॉटन इंडस्ट्री बोल दो। कॉटन लेते हैं नेचर से और कपड़ा बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, ठीक है। आप बोल दो, क्या बोलोगे? और शू लेदर, शू कंपनी हो गया। ये सब सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा। आप नेचर से लेते हो प्रोडक्ट और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से डायरेक्टली आता है। थर्ड क्या है? टर्टियरी। टर्टियरी इज मोस्टली सर्विसेज काइंड ऑफ थिंग। ओके, जैसे विच हेल्प्स सेकेंडरी मार्केट टू ग्रो। उसको सरवाइव थ्राइव करने के लिए जो मार्केट है, सेक्टर है, दैट इज टर्टियरी सेक्टर। जैसे टर्टियरी सेक्टर में हो गया क्या? सर्विसेज हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सब आ जाएगा टर्टियरी सेक्टर में। क्वाटरनरी सेक्टर, अब ये वैल्यू एडिशन सेक्टर है, एजुकेशन रिलेटेड, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। आई एम पार्टिंग एजुकेशन टू यू गाइस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पे हो थोड़ा बहुत। ओके, आप जो रील्स देखते हो, इंस्टा वगैरह, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाएंगे। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which mandate has the RBI issued regarding RTGS and NEFT transactions by April 1, 2025 to enable free cross-border fund transfers? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी पैसे भेजो फ्री। सेकंड, इंप्लीमेंट अ बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फीचर फॉर फ्री। आप किसको पैसे भेज रहे हो पहले पता चल जाए। गूगल पे में पहले क्या था? यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप किसको पैसे भेज रहे हो पता नहीं चलता था, राइट। अब पता चलता है ना, नाम आ जाता है, पहले नहीं आता था। सो ये वाला फीचर इनेबल करना है, या फिर इंक्रीज द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर आरटीजीएस एंड एनईएफटी ट्रांसफर्स, या फिर लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, एनईएफटी का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके, so this B is the right answer. RBI has issued a mandate to implement a beneficiary account name lookup feature for free. Okay, April 1, 2025 से आपको पहले पता चल जाएगा आप पैसे किसको भेज रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु, तरुण, किशोर, और these are the schemes of Government of India, and these are associated with which sector? Health, banking, micro unit business development, education, or none of the above? Or none of the above? Shishu, Tarun, Kishore. These are the various loan categories under Mudra scheme. Okay. The correct answer is micro unit business development. Under Mudra scheme, okay, there are three major categories. Shishu. Shishu का spelling क्या है? SHISHU. Okay. Second is Kishore. And third is Tarun. ओके, इसमें 0 to 50K तक का बजट है, मतलब लोन अप्रूव होता है। इसमें 50K to 5 lakhs, अप टू 5 lakhs, एंड तरुण में अप टू 10 lakhs।
अप टू 10 lakhs। रिसेंट बजट में ना एक और लोन सेगमेंट इन्होंने पास किया है रिसेंट बजट में, तरुण प्लस। क्या है वो? तरुण प्लस। इसके अंडर यू कैन गेट अ लोन अप टू 20 lakhs। बट इसके लिए एलिजिबल होने के लिए ना, एलिजिबल होने के लिए आपको पहले तरुण कैटेगरी में लोन लेके उसको रिपे करना होगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ लोन अंडर तरुण प्लस। ठीक है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लोन सेगमेंट में नहीं रखते हैं। आपको तरुण कैटेगरी में लोन लेना होगा अप टू 10 lakhs और उसको टाइमली रीपे करना होगा, उसको क्लोज करना होगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू टेक अ लोन अंडर तरुण प्लस विच इज अप टू 20 lakhs। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new CEO of DBS Bank effective from March 2025? Very important question. Very important question. Who is set to be the new CEO of DBS Bank? Surojit Som, Rajat Verma, Piyush Gupta, Gautam Jain. If you know, you know. The correct answer is Rajat Verma. Okay. Chalo guys, let's move to next question. Who among the following leaders of Indian freedom movement gave the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it"? क्या है इसको? स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। किन का था? इट वॉज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या था? फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। सुभाष चंद्र बोस जी, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। ठीक है। लाला लाजपत राय जी का कोई कोट? फेलियर्स एंड सक्सेस आर समटाइम्स नेसेसरी फॉर विक्ट्री। ओके, ये था लाला लाजपत राय जी का। गोपाल कृष्ण गोखले, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने पास्ट में भी आपको बोला है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, डू दैट स्ट्रेट अवे। Which of the following is not a BRICS nation? Which of the following is not a BRICS nation? South Africa, China, Brazil, Sri Lanka, India. India is a BRICS nation, yaar. Okay. List of all the BRICS nation are South Africa, China, Brazil, India, Russia, Iran, Indonesia, Egypt, एक और कोई कंट्री है, एंड देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। check that one. Okay, Ethiopia है, I'm not sure. I think it is Ethiopia. But एक बार चेक कर लेना। Ethiopia. This may be right, this may be wrong. हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, एक बार इसके लिए चेक कर लेना। ओके, आई एम सॉरी टू goof up. So correct answer to this question is साउथ अफ्रीका तो है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, इंडिया भी है। श्रीलंका is not a BRICS nation. So Sri Lanka is the correct answer for this question. Sri Lanka is the correct answer for this question. Come on guys, let's move to next question. Which of the following is not a protective function of stock exchange? पहला, prohibition of fraud and unfair trade practices, controlling insider trading, regulation of takeover bids by companies,
प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। बेटा सर क्या ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, 99.9% चांस है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट सर अगर हम इसको लेके थोड़ा रीडिंग करें, स्टॉक एक्सचेंजेस, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके उनके हेडक्वार्टर्स, सर इनके फंक्शंस, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इट विल टेक यू 15-20 मिनट्स। उससे क्वेश्चन आएगा, उसके चांसेस 50% है कि आएगा। ओके चलो, ऑफ द गिवन थिंग्स, regulation of takeover bid by companies, this is not a protective function of a stock exchange. This is not a protective function of a stock exchange. आप अगर इसको थोड़ा डीपली पढ़ते भी ना, आपको समझ में आ जाता। प्रोटेक्टिव फंक्शन, फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो अपने वो करते थे, चला ना स्कैम 1992 जो आई थी, बहुत चली थी। ओके हाँ, वो करते थे, ठीक है। उनका नाम क्या है मैं भूल गया, आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ, दिस इज अ प्रमोटिव फंक्शन टू प्रमोट, protective function is to promote fair practices. C is the right answer for this question. Next, match list 1 and list 2 regarding the Paralympics. Olympics, Paralympics, पहले ओलंपिक्स हुआ, उसके जस्ट बाद पैरालंपिक्स हुआ। ओके, मेडल विनर्स आपको पता होने चाहिए, टैली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन है पता होना चाहिए, इंडिया का स्टैंडिंग क्या है पता होना चाहिए, नॉट ओनली इन ओलंपिक्स बट पैरालंपिक्स कहां हुआ ये पता होना चाहिए, ये कहां हुआ ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो पैरालंपियंस है ये लोग, एंड इन्होंने मेडल जीता है, आपको मैच करना है, ठीक है। आपको इतना भी पता होगा कि ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, तो चीजें आसान हो जाती है। ये एथलेटिक्स में है, एंड ये शूटिंग है शायद। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा ने किस पे जीता था? अवनी शूटिंग, राइट है ना, शूटिंग। मैं कंफ्यूज हो रहा था। अवनी लेखरा वोन शूटिंग इन, वोन गोल्ड इन शूटिंग, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। नीतीश कुमार बैडमिंटन, गोल्ड इन बैडमिंटन। मनीषा रामदास बैडमिंटन, ब्रॉन्ज इन बैडमिंटन। योगेश कठुनिया सिल्वर इन एथलेटिक्स। वो होता है ना ऐसा जो फेंकते हैं, डिस्कस थ्रो। तो करेक्ट आंसर इज ए का 2, बी का सी, बी, ए का 2, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, माय बैड, ये निकल गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ हिंदू डीटी लॉर्ड शिवा इन द हिंदू मंथ ऑफ कार्तिक, चैत्र, फागुन, वैशाख। ओके, मंथ्स क्या क्या है हिंदी में यार? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, माघ और लास्ट में फागुन। ओके, ये है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। मेरी दादी भादो बोलती थी, मुझे मेरी दादी से याद है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, अगहन बोलती थी वो इसको, माघ को अगहन, और लास्ट में फागुन।
तो मेरी दादी का बोला हुआ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर इधर उधर हो गया तो यार माफ करना, ठीक है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर 31st of December 2024, वेरी सैड डे। स्पीकिंग ऑफ दादी, आज उनकी 13वीं है। 31st दिसंबर को भी लॉस्ट है, एंड आज उनकी 13वीं है। बट आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग कमेंट्स में कुछ लिखना मत, रेस्ट इन पीस या कुछ भी मत लिखना रिगार्डिंग माई ग्रैंड मदर। ओके, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, मैं जब भी ये बोलूंगा आई विल रिमेंबर हर। भादो, भाग पद्र है वैसे, भाग पद्र है, मैंने जहां तक मुझे पता है, लेकिन मेरी दादी भादो बोलती थी। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। अश्विन, अश्विन, कार्तिक, पौष, एंड देन देयर वाज, नहीं अश्विन मार्गशीर्ष होगा यार, ये अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, ओके, भाद, एंड लास्ट पे फागुन। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और ये ना समवेयर इन द मिड ऑफ मार्च स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है मार्च मिड में स्टार्ट होता है हमारा। ये हिंदू का जो कैलेंडर है, इसके हिसाब से चैत्र मार्च मिड से शुरू होता है, अप्रैल मिड में खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद सब एक एक महीने उसी हिसाब से, ये अप्रैल मिड से मई मिड एंड सो ऑन, ओके। और महाशिवरात्रि फागुन में, लास्ट महीने में, फरवरी मार्च का जो टाइम है ना, ये फरवरी मार्च, फरवरी मिड से मार्च मिड, तब होता है महाशिवरात्रि। एक बार आप लोग चेकआउट कर लेना, ओके। एंड अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट्स में डोंट राइट रेस्ट इन पीस, ओके। लेट्स मूव एंड यस गाइस, thank you for watching the session, ठीक है। do like the session, और and I'm planning to come up with topic wise GKs, जो important topics है, not all the topics that I show, जो important topics है ना, 2-3 क्लब करके I'll come up with dedicated sessions, okay। if you want them, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए, ठीक है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से I'll make videos, okay। till then, bye bye, hope you are doing good in your life and hope this session helped. Have a great day ahead, guys. Let's meet again in next session.